taken my workshop in EFT both, and my journey has been tremendous. And I have gained a lot from this two workshops. So I'm continuing my journey to be a better version of myself. Okay, so you're doing this for yourself, huh? Yeah. I'm not able to hear you properly. Your voice is cracking. Give me a second. Am I audible now? Yeah, a bit. Yeah, is it okay now? Yeah, it's okay. So to both the Rashmi students, physiotherapist, and then I proceeded from the physiotherapy. I just went into the fitness line. So I have around 13-14 years of experience in the gym setups and spas and everything. Then I did my lots of certification courses like nutrition and sports sciences and everything. So I am actually planning to set up my own clinic, which would not be just the physio part, but it would be maybe weight loss and weight gain and stuff. Plus, I'm doing my MSc in psychology also because I really love this psychology subject. So I would be having my counseling clinic also. Yeah. So there is a lot of to-do list on my thing because after my son was born, I actually got too much into him. I just literally forgot myself. So now he is 5 years, 6 years. So it's fine now. Now I think that I should restart. High time. So you have one son. Yeah. And how old is he? He is going to be 6 August. He'll be what? Sorry? He'll be 6 years. 6. Oh, बहुत छोटा है. Okay. Oh, yeah. That's what. So yeah, I then why I connected with the Sharma sir and the holistic living is because I underwent series of what do you call it? Not tragedies, but something happened and I just got into severe depression, like severe. And I ended up, having all these suicidal tendencies and everything. So I have just recovered. I think I won't say I've recovered 100%. I'm still on antidepressants, but then I have recovered to a level that I can sit and study and understand the subject. So EFT, I have done just last week, and it did help me. A lot of affirmations and all. It is helping me. And then sir is asking me to go for this temperament classes also. That I'll see what to do. What about you guys? You guys are perfectly all right, huh? Trying to be. Oh, okay. Okay. Rashmi, we can't hear you. Rashmi Red, we can't hear you. Rashmi, unmute yourself. Sorry. You should go for the temperamental edge class because it's so informative and it's so funny. Okay. You will actually see the faces of people with the faces that sir shows you. No, yeah, I think I'll do it, inshallah. I'll do it. Yeah, you should. I enjoyed it a lot, and each time I used to see a face, I used to start smiling. और महेश जी मुझे बोलते थे किसी की याद आ रही है? I said हाँ मेरे पति की, मेरे ससुर जी की. Like I could relate to every face that he showed. It's really nice. Yeah, I'll do that, inshallah. I'll do that for sure. You should. Otherwise, I mean, the profession or just homemaker or what? No, I am वैसे homemaker. Professionally कुछ नहीं कर रही हूँ, but I have done fashion design. Like I'm a diploma in fashion design, पर मैंने pursue नहीं किया because हम relocate करते रहते हैं. So and then I did past life regression. Then I did transaction analysis. Then temperamental edge, numerology. अभी I'm doing chakra balancing. Okay. तो बस खुद के लिए ही कर रही हूँ जो कर रही हूँ. Maybe later on you can earn out of it. Inshallah. Yeah.
Sorry for that. So बीच में break अभी शिवा ज्वाइन कर रही है, मेघा ज्वाइन कर रही है. Yes, people are joining. So by 3:30 काफी लोग ज्वाइन करेंगे. So आपकी चिट चैट हो गई? देख लिया Yes, आपने? ये ना गप्पे मार ली बीच में? That's good. So okay. Shiva, how are you? Shiva. I'm good, sir. How are you? Great, wonderful, wonderful. Megha, are you there? Okay. Hi Shiva, hi Megha. Hi, Rashmi. How are you? I'm very good. How are you? You look tired. Hi, Shiva. I am. Hi. Looking forward to the weekend. Friday evening. Yeah, Oh, whole week Friday gone. evening. आज तो पूरा रिज्यूनेट करना है आज. Seriously. रिज्यूनेशन का टाइम है आज, राइट? मैं वही हाँ. सोच रही थी कि थैंक गॉड 3 दिन कोई क्लास नहीं है, शांति से रहूंगी. शांति है. ये वाली जो है ना, ये तो वॉलंटरीली क्लास है, तो क्लास भी नहीं है, जो डिस्कशन है. ओके, ग्रेट, वंडरफुल. मेघा ज्वाइन कर रही है, शिवा ज्वाइन कर रही है. सो वी हैव एक्चुअली वी हैव मोर पीपल ज्वाइनिंग इन, बट साथ साथ कर लेते हैं. ओके, सो शिवा, रश्मि को आप जानते ही हो, रश्मि इंडोनेशिया को आप जानते हो, मेघा को आप जानते हो, एंड साम्या इज न्यू फॉर अस. सो साम्या, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेट्स इंट्रोड्यूस वंस मोर. One, two line on. Shiva and That will help. Megha, how are you? So I'll be joining you guys from today. Inshallah, I'll just continue the journey. And I've said pretty much about myself. I think if people are joining again, I'll have to repeat it again. So I'll keep it for the last part. Yeah, Otherwise, I'll have to Yeah, do I think that's better. that's better. Yeah. So we can start discussing. So when people will join, normally 3:30 people will join. So अगर दो चार तो 3:30 के बाद एक बार इंट्रोडक्शन कर लेंगे, right? एक दूसरे के Yes. साथ. But by the way, Samya is joining from, basically she is from Srinagar, nowadays in Coimbatore. So she is the first participant from Jammu. So now Jammu and Kashmir अलग-अलग हो गए ना? Yes, sir. Union territories, so-called. So you are from Jammu. So it is Srinagar in Jammu. I'm from Kashmir. So this is Kashmir. So Srinagar is Kashmir, right? Yeah. Srinagar is Yeah. Kashmir. So it is very new. So we have first participant from Kashmir itself in Feeling Friday. And Samya, Shiva is joining us from Malaysia. नहीं, Indonesia. Shiva कहाँ join कर रही है? Shiva. From Singapore, sir. Yes, ये confusion हो जाता है मुझे. शिवा से नहीं कंफ्यूज होता, इंडोनेशिया से कंफ्यूज होता है. शिवा ज्वाइन कर रही है सिंगापुर से, साम्या. And Yes, so sir. we have Rashmi from Indonesia, Shiva from Singapore, and Megha is joining from Delhi NCR, and Rashmi is joining from Guwahati, and Samya is joining from Coimbatore. Yes. So great. Everything is up, huh? Yeah. Nobody So from Gujarat. Huh? I'm from Gujarat. Yes, I'm from Gujarat. Oh, but you're from Gujarat, okay. Pardon? No, that's what I thought. You're from Gujarat, so yeah. I'm Gujarat. Right. Okay, that's great, wonderful. So this is the Feeling Friday session. The Feeling Friday is designed to discuss, share, and express our emotions on certain issues, and we can openly हम बात कर सकते हैं. जो भी चीजें हम सीख रहे हैं, लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, उनके साथ कोई हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, we can talk about that, and we have some 2-3 topics जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस भी करते हैं. So this is going on since January. And we are finding that yes, it is helping people in joining us. So आप कहीं भी हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, तो आपको पता है कि 3:30 से लेकर 4:30 के बीच में every Friday we have this session, and you can join in with like-minded people and all. So this is all about Feeling Friday. And today we will be covering 2-3 topics generally. As I told you in the chat itself, हम उसके बारे में बात करेंगे. और people will join, then we can have something with us also. So I'm just checking my email. मैंने क्या लिखा था आपको? Yes. So there are 3 things we are going to talk about. Is what is the buzzword emotional intelligence? क्या है, क्या मतलब है इसका, और हमारी रोजमर्रा की लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या पार्ट है, यानी भावनात्मक उत्कृष्टता बोल लीजिए हिंदी में इसको, यानी अपनी भावनाओं को समझने का क्या, उसको इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं. नाम ऐसा दे दिया, मतलब है क्या चीज.
उसके बारे में हम बात करेंगे। एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग, बार बार ये चीज आ रही है सामने, तो आपसे भी डिस्कस हो गया इसका कि एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज एंड अंडरस्टैंडिंग, इन तीनों चीजों के बीच में जो डिफरेंसेस है ना, वो डिफरेंसेस ही बहुत बड़ा एक वो क्रिएट कर रहे हैं। तो सम पीपल थिंक कि आफ्टर नोइंग EFT ऑल, आफ्टर नोइंग टेम्परामेंट, स्टिल वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज। सो ये क्वेश्चन आता है बार बार कि ऐसा है कि हमें अपने आप को चेंज करना है, तो इसका मतलब कोई हुआ। सो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, ये है क्या, क्यों अपने ऊपर काम करने का मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं है, या खुद को चेंज करने का कॉम्प्रोमाइज का मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं, आज उसके बारे में बात करेंगे। और थर्ड चीज, अगर टाइम मिलता है तो हाईली सेंसिटिव इंडिविजुअल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी तक हमने पिछली बार हमने बात की थी टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के बारे में, राइट। आज हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे हाईली सेंसिटिव इंडिविजुअल्स के बारे में, बिकॉज वो भी एक बहुत तरह का एक हमारे सामने चैलेंज रहता है। So there are three things from my side. This we are going to discuss. अगर हमें time मिलता है तो. Anything from your side? Yeah. हाँ, What Megha, did you what's say? going on? Megha, anything you want to say? आवाज कहाँ गई तुम्हारी? Not audible. You're not audible. तुम्हारा ये तो ईयरफोन में प्रॉब्लम है, बिना ईयरफोन के बोलना। Now I'm audible. Yes, now you're audible. Now it's fine. It's fine. You can find. Sir, last time, is it fine now? It's fine. Without earphone. Last time there was a discussion on narcissist personality, so I have questions on that. Please continue. People will get benefit So out of that. basically, sir, my question is that if we are working on temperament and we are getting aware about our temperament and people around us, and we realize that it's not falling in the temperament category, it's falling in the narcissism, then it will not work. Okay, so take it like this. हमने पिछली बार डिस्कस किया था नार्सिसिज्म जो है वो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आता है। वो एक्चुअली दिस इज नॉट समथिंग एनीबडी कैन बी नार्सिसिस्ट, यू नो, इन एनी पर्सनालिटी। ऐसा नहीं है कि परफेक्ट नार्सिसिस्ट नहीं हो सकते या यू नो पावरफुली नार्सिसिस्ट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ऐसा लेवल है जहां पर वो 5-6 जो हमने क्वालिटीज देखी थी, जो 5-6 चीजें हमने डिस्कस किया, याद है मेघा, हमने 5-6 चीजें डिस्कस की थी कि ये होती हैं उनके अंदर, Yes. राइट? Yes. So can you repeat it अगर आपके सामने लिखा हुआ है? They lack empathy, हाँ, highly entitled people, grandiose brands को लेके बहुत ज्यादा obsessed होते हैं, हाँ, very superficial, हाँ, and they are unable to regulate their emotions, and they Yes. are hypersensitive to outside criticism. yes. So ये 6 ऐसे पैरामीटर्स थे जो अगर किसी इंसान में एक साथ दिख रहे हैं आपको, तो वो हो सकता है कि वो नार्सिसिस्टिक, आप यू आर डीलिंग विद नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, यानी वो पर्सनैलिटी जो कि बहुत ज्यादा ही आपको परेशान कर सकती है। और हमने ये भी देखा था कि हर एक टफ पर्सनैलिटी नार्सिसिस्ट नहीं होती, या टफ पर्सनैलिटी टॉक्सिक नहीं होती है। टफ का मतलब होता है इट्स यू नो दे आर टफ लाइक पावरफुल पीपल, दे आर टफ पीपल, बट दे डोंट have to be toxic or narcissistic. टॉक्सिक कब बन जाते हैं? जब वो टफनेस वो पहुंच जाती है लोगों को, जब आपको ऐसा फील होने लगता है कि you are now you know stuck with somebody and you are feeling your self esteem is going low, you are feeling suffocated with them. This is called you are living with a toxic personality, you know, toxicity create हो रही है। और जब वो पहुंच जाता है लोगों को जानबूझकर प्रॉब्लम देने में या नुकसान देने में, तो हम बोलते हैं कि वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की तरफ चला गया, राइट?
सो टेम्परामेंट कहाँ काम नहीं करता, बात ये नहीं कि नार्सिसिस्टिक में काम करता नहीं करता, बात ये है कि कौन डील कर रहा है उससे। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आइडेंटिफाई, सो आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है इसको समझो। why we need to identify? Yes, Amit, you want to say something? Yeah. So you said that a person who is narcissist, he is doing or she is doing things intentionally, right? Yeah. It's not that subconscious mind में है तब हो रहा है. नहीं, वो इंटेंशनली है और उनको पता होता है अंदर से कि आई एम डूइंग इट दैट बिकॉज दे आर वेरी, so those people are very smart people in the sense they are insecure people, unempathetic people, and they are always in search of validation from others, or they want control, actually hyper sensitive to criticism and control, they want control. So वो लोग बन जाते हैं, वो नार्सिसिस्ट कैटेगरी में आते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई नार्सिसिस्ट। ऐसे नहीं पता लगता है कि आपने एक बार बात की और पता लग गया, वो पता लगता है आपको लंबे स्पैन। इसीलिए ज्यादातर एब्यूसिव रिलेशनशिप में लोग रह जाते हैं लंबे टाइम तक, बिकॉज पता लगते लगते बहुत टाइम लगता है, काफी टाइम लगता है उसको पता लगते हो। लेकिन अगर उसको अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि वी आर डीलिंग विद दोस काइंड ऑफ पीपल, ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इफ यू नो, देन योर reactions and your actions will be changed. Your actions and reaction will be different for those people. And आप victim से पहले, उसके victim बनने से पहले you can come out of that, उस चीज से बाहर निकल सकते हो आप, इसलिए ये पता होना जरूरी है। बट जैसे मेगा बोल रही है कि अगर नार्सिसिस्टिक हमारे नेचुरल टेम्परामेंट से बाहर है तो टेम्परामेंट काम नहीं करते। ऑफ कोर्स उनके लिए काम नहीं करते, बिकॉज they are like for example, अगर किसी को मेंटल इशू हो जाता है तो उसके भी 3 पैटर्न्स होते हैं। एक तो वो यहाँ पर होगा जो खाली मोटिवेशन से ठीक हो जाएगा, उसको मोटिवेशन चाहिए। दूसरा है उसको अंडरस्टैंडिंग चाहिए या उसको कोचिंग चाहिए। तीसरा है वो साइकेट्रिक की तरफ चला गया है। और चौथा है कि वो मेंटल उसका कंप्लीट इम्बैलेंस हो गया। तो ये 4 स्टेजेस हो जाते हैं। इसमें एक स्टेजेस ये भी तो होती है ना कि कोचिंग में कौन कौन से लोग, फॉर एग्जांपल आई एम अ कोच, आई नो किस हद तक जाना है और किस हद के बाद नहीं जाना है। इवन EFT में भी, इवन गैरी क्रेग सेड दैट डोंट गो वेयर यू डोंट बिलोंग। तो ऐसा नहीं है कि एक बंदा बहुत जो उसको डिप्रेशन है, हाई डिप्रेशन है, और आप उसको बोल रहे हैं कि आप मोटिवेशन से वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह से वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जब वो वहां से आगे चला जाता है उस चीज से, देन you can't apply principles of temperament, आप अप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन आपको ये समझना होता है अपने आप को स्टिल कि if you are a peaceful, you are dealing with narcissistic, you are a powerful, you are dealing with narcissist। तो आपको अपना टेम्परामेंट तो समझना ही, लेकिन सामने वाले के ऊपर टेम्परामेंट का इफेक्ट नहीं आएगा। That is the question, ना मेगा? So one more, the thing is that if it transfers a lot to the children also, because they are having the same family environment and whatever. So it is generally realized that as in early adulthood, it is realized that the children also have that characteristic. So how can we stop it if the family has this kind of a thing, these kind of features, and how can we stop it in children so they don't have it? पेरेंटहुड का फर्क आता है, पेरेंटहुड का फर्क बच्चों पे आता है और उनकी नर्चरिंग पे भी आता है। और वो जो जिस तरह से वो देखते हैं अपने परिवार में होता हुआ, वो टेंडेंसी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर वहां पर भी अगर उन्होंने देखा उनके फादर हैं, उनके ग्रैंडफादर हैं, या उनके चाचा वगैरह हैं, या जो भी फैमिली में उनके भाई हैं इस तरह का डील करते हैं, तो उनके अंदर वो चीज हाउ दे सी द वर्ल्ड वो बढ़ जाती है, बढ़ने की उम्मीद बढ़ती है। इसीलिए वो वहां पर जगह अगर किसी को भी पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर घर में किसी को भी मालूम है कि इस टाइम पर कैसा रिएक्ट करना चाहिए, तो उसको उस एनवायरनमेंट में जितनी कोशिश हो सके, जितनी अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं वो जो वहां पर लोग हैं, उतनी कोशिश करनी चाहिए टू ब्रिंग दैट बैलेंस, उस बैलेंस को लाने के लिए। बट पेरेंटहुड का फर्क होता है। सो वी कांट से कि आपको उनसे बाय, so suppose a person who is a child is born in
दैट काइंड ऑफ पीपल, उन लोगों के बीच में रहता है वो, लेकिन वो उनसे अलग रहता है, मतलब पैदा वही हुआ लेकिन अलग रहता है, तो उसकी पर्सनैलिटी में वो चीज आना, कोई वो नहीं है कि नार्सिसिस्ट बाय बर्थ होते हैं, ऐसे नहीं है, दे आर डेवलप, नो, वो इवॉल्व होते हैं। तो वहां पर जब उन्हें वैसा माहौल मिलता है जैसा उनको मिलना चाहिए, तो दे कैन, वी कैन हैंडल देम। अदरवाइज अगर वो उसी माहौल में रहेंगे तो चांसेस है कि वो दे विल सी द वर्ल्ड लाइक दिस, लेकिन वो वैसे नहीं आता, कैरेक्टरिस्टिक की तरह नहीं आता है। So the environment change can help a lot. Absolutely. Environment change can help. But still, Environment change can help a lot. You're right. So, लेकिन वो ऐसे नहीं, टेम्परामेंट टाइप नहीं है, वो साथ में आता हो, ऐसा नहीं। If a child is born, तो तभी से वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं, वो बनाए जाते हैं, this kind of thing. So उसका तरीका वही है कि उनको जितना हो सके अपनी तरफ से जो इनपुट आप दे सकते हो, बेटर, when you know it, that input should be given all the time, exposing to that particular areas of thing, और वो तभी हो पाता है जब उनसे आप अलग कर पाए। It's a very difficult situation basically. and it needs a lot of effort also from the parent, like whatever environment the child is in. Yes, it needs a lot Because of it's effort. opposite forces working. So just Yes. like there are opposite personalities, there are like strong and mild personalities, like powerful. In the same way, narcissist also, it's like strong narcissist and mild narcissist. So basically what is, एक होता है नार्सिसिस्ट, एक होता है एनपीडी, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो ये भी दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन नार्सिसिस्ट का मतलब अगर आप समझे तो वो लोग हैं जो जिनके अंदर ये 6-7 चीजें नहीं होती, एम्पैथी नहीं होती है लोगों के लिए। सबसे बड़ी चीज है कि उनको वो इंसान को इंसान नहीं समझते, दैट इज द बिगेस्ट थिंग, ह्यूमैनिटी जिसे बोलते हैं ना, वो चीज नहीं होती। they think that I am the big, I am the best, I am the only one, and other people are nothing. So छोटी छोटी चीजें जैसे बच्चों को सिखाना कि जैसे अपने आप मेड से भी कैसे बात करनी है, सिक्योरिटी पर्सन से कैसे बात करनी है, ये छोटी छोटी चीजें भी आप बच्चों के सामने करते हो तो उससे वो सीखते। दैट वे यू कैन, उनके क्वेश्चन आएंगे जो आप सॉल्व कर सकते हो, बट दिस इज एंटायरली पेरेंट्स थिंक कि उनको कैसे सिखाया जाए, राइट। तो इसका कोई इसका वैसा आसान आंसर नहीं है, बट जो हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज, सो प्रतिभा joined. Hi Pratibha, how are you? Good afternoon. Very good afternoon. So okay, so it is, so we, okay, just a minute, some people are also doing. Okay. So सब चले गए छुट्टी पे, ये शिवा ही तो बाकी सारे चले गए, क्या बात है, मतलब दैट इज एक्सक्लूसिव टू यू, दैट्स गुड। मैं ऐसा है ऑफ कर देती हूँ सर ताकि चारों आ जाए। हाँ, सारे चले गए एकदम ही, है ऐसा भी होता है। शिवा पावरफुल है लेकिन ऐसा तो मतलब नहीं कि स्क्रीन पे आते शायद चले जाएंगे। वाओ, दैट्स गुड, वेरी कूल। ओके, सो यस, अब आप, सो हमने बात कर ली पिछली बार की नार्सिसिटी के बारे में। Megha, you can on the video, so we are waiting for 5 more minutes for if anybody can join, then otherwise we are, so साम्या से आज मैंने एक चीज रिक्वेस्ट की थी आप सबके लिए, बट एक डिफरेंट चीज आई है हमारे पास, आज सरप्राइज है आपके लिए, मैंने लिखा था सरप्राइज है। तो साम्या लव्स टू सिंग, साम्या को बहुत पसंद है गाना, और किसी वजह से वो नहीं कर पाई है बहुत टाइम से। तो हमने कहा क्यों नहीं यहाँ करेंगे, फीलिंग फ्राइडे किस लिए है, इतने सालों से आपने वो चीज छोड़ी हुई है, व्हाई नॉट वी हियर योर ब्यूटीफुल वॉइस एंड द सोलफुल थिंग्स, स्पेशली स्ट्रेट फ्रॉम कश्मीर, लेट्स सी व्हाट इज इन स्टोर। सो आज मैंने सामने से रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा डू यू वांट टू टेक बैक दैट थीम,
बिकॉज सामने के बारे में थोड़ा जानेंगे तो प्रीवियस में ये बहुत एक्टिव रही और काफी कुछ इन्होंने वो स्टार्ट किया, बट आज की डेट में सब कुछ ठंडे बस्ते में है। तो बीस आई आज सामने कि ठीक है, आज आप ग्रुप के लिए कुछ हमारे लिए दिखाए, सुनाए हमें, ताकि हम उस चीज को सुन पाए। तो सामने, आर यू रेडी फॉर दैट? Yeah, why not? Yes, so what we can do is we can say बीच में करते रहेंगे। तो what we can do is before we go up to the next topic is emotional intelligence, लड़की है क्या भला और क्यों काम करता है, और आज वो पार्ट लेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस का जो रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ काम करता है, आज की डेट में अभी भी कर रहा है। इट्स नॉट अबाउट सिर्फ बुक्स में है या ऐसी चीजें, कुछ ऐसे मिथ्स हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको कि हम वो करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे आज इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। बट सो इसका बेनिफिट लेते हैं कि सामने आज हमारे साथ हैं और थोड़ा सा जो ग्रुप को बताना चाहें सामने अपने बारे में, थोड़ा सा अब बता सकते हैं। प्रतिभा भी है, मेघा, रश्मि और प्रतिभा है। सो नॉट बताना, ये बताना कि मैं कौन हूं। Why I am telling you to sing? That's the introduction you can give, and then we can have something from your side. Please go ahead. Yeah, just She's out? No. दो प्रतिभा। So कौन सी प्रतिभा कहाँ है भाई? उस फोन में ना आवाज काफी कम आ रही थी। Okay. So I am supposed to say something. नहीं, प्रतिभा को ढूंढ रहे थे अपना। तुम supposed to say नहीं, supposed to show something. Yes. Yes, Samya. So, what do you want me to say? Why ये पीछे से आवाज तुम्हारे आ रही है कि एक घर? नहीं, तुम्हारे नहीं। ये प्रतिभा के यहाँ से आ रही है। प्रतिभा पीछे से आवाज क्यों आ रही है? Yes, Samya, you can unmute and you can introduce the group that why I'm telling you to sing. well, it's all girls and just one man there. So I loved singing, and it was my passion, or you can say it still is my passion, but I couldn't continue it because of some family issues. And I got married and I was asked not to sing. And I just waited for like 10 years now, it has been. One of my CD was also released in Kashmiri language, and that was, signed and given really like A++ marks for Lata Mangeshkar. And back then I was just in my college. So it has been almost 11 years now when Lata ma'am had herself called me to Mumbai, to the recording studio and all the stuff. But I chose my love life more than that. And I thought, let's give it a break and maybe in a few years I'll restart. But that never happened because of whatever reasons. Then down the line, I lost myself actually. When you really love something and when there is something really in your blood, it's your passion. And if you cannot do it because of external factors, at a point it becomes very, difficult to digest it and to live without it. And then when I used to see all the singers, on this public platforms, I used to get so upset and I used to be jealous. And then I thought, no, this is not normal. What's happening? Then I think 2 years back, I just recorded one of my, that is a Muslim song kind of thing. So that I did and I got really good response. Again, inshallah, I have promised with myself that within this month, because 18th is the birthday of my son. So I have promised him that Mama is good, because he's seeing my, college videos and all. Then he's like, Mama, why you don't sing anymore? Or why you don't do any public appearances anymore? So I have promised him that, by your birthday, which is on 18th of August, I will be recording no matter how many songs, no matter what happens outside world, no matter what people say, Samya, don't do this. This is against religion or stuff. I'm not going to listen to anything now. So, and that is a very strong step for myself, because I am a kind of person, I, keep relations always, first. But down the line, I thought, no, when you don't take care of your own self, you don't take care of your own feelings and emotions, nobody would do that. किसी को उतना चट्टी नहीं है कि फिर आपके बदले कोई बात करे. तो काइंड ऑफ मैंने अभी जैसे सर मुझे कहते हैं ना, मैं अभी बैटल ग्राउंड में हूँ और मैं पूरा झंडा ये हो लेके हूँ, रहना है साथ रहो, नहीं रहना है, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग अबाउट मी एनी मोर, बिकॉज
जितना मुझे लगा, जितना होना चाहिए था, I did it. And as I told you guys also that I got into a severe depression, like suicidal, and I have marks all over my arms. And like 5-6 years back, I was a kind of woman that all the friends used to come to me for counseling. Sami aise problem ho gayi, ye ho gaya. And when I got into depression, and they're like, it cannot be true. Like, aisa jhoot mat bolo yaar, tumhe kuch nahi ho sakta. So I was very strong kind of woman. But then eventually, jo bhi strong hota hai, insan to aakhir mein to ab insan hi hai na. You can't. There are few things you cannot take. So what used to give me strength is I used to cut myself till I, bleed like badly. That used to give me relief. मैं क्या बोलूं? I left my job, everything. I just ruined myself in a way. Then it has been like 5 years on and off. I am on antidepressants, but now from past 5 months, I am doing it religiously. मैंने medicine बीच में छोड़ी नहीं. No matter what comes, I do what I like because I don't give damn what people say, people think. Because वही है ना, मैं इतना लोगों के बारे में सोचती थी, मैं डाउन द लाइन खुद को ही भूल गई. और उससे ये हो गया, जो लोग मेरे साथ अटैच थे वो भी मुझे भूल गए. They started taking me for granted. हाँ, ये तो कर लेती है adjust. So that is a very strong step that I have taken. And what else? Now I'm on medicine, Yeah, and I don't have any other tendencies, alhamdulillah. I'm just trying to be strong for my son. And as sir said about the narcissist personality, so I'm raising my son to be not a feminist, but an equalist, so that he should know there should be gender equality. It's not that he has to give respect only to women. So he has to give respect to both the genders. So he is 5 years old, and I have made him learn how to do dishes. He knows how to make nice chapatis. He knows how to do mopping and all, because I want him to be more independent. And I always tell him to repeat this phrase that, you know what, kitchen doesn't belong only to women. So when he's hungry, he'll go to kitchen, he'll maybe do something or other for himself. Which may look like बहुत छोटी सी बात है, पर कश्मीर में it's a big thing. अगर कोई लड़का किचन में जाके कुछ पकाने लगे तो भाई बवाल हो जाएगा. So I don't want him to fall in that category. I don't want. I mean, I tell him, see, if you're hungry, you have a stomach. Mama has a stomach, so everybody has stomach. We have to do it by ourselves. And I'm so happy, that he's 5 years and he doesn't know the word ugly. He doesn't know what ugly means. So अगर कोई बोलेगा ना इसको साई पे बड़ा ugly है, Mama, what is that? So I have never put anything in his brain which is ugly. So I tell him it's unpleasant or it's not too good. Literally, he doesn't know what ugly is. And I think हमें जो बात करें ना, फिर शादी के बाद लड़के चेंज हो जाते हैं या फिर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. I think we mothers, if we take a stand, like I'll tell about myself, if I'll raise him well today, tomorrow he's going to be a good husband, a good father, then he can carry forward you can say the legacy with him. But अगर हम सिर्फ बातें करेंगे, जैसे हम अभी बातें करेंगे, यार लड़के ये नहीं करते, वो नहीं करते, but root level पे घर पे we are not starting from anything. So it will be all cribbing and it won't go anywhere. So that's what I'm doing. So my main focus is on him right now to make him a good human being, not a good Muslim or a good any other thing. A good human being. जब आप एक अच्छे इंसान हैं, तब आप अच्छे मुस्लिम, हिंदू या जो भी है, जिस धर्म से हैं. So I'm working on that, and alhamdulillah, I think I have done a good job seeing him right now. And when our domestic help also comes, so we don't call our domestic help maid. So maid word we omit kiya dictionary, because again, nobody is nobody's servant. By the end of the day, the employees, we are paying them. ये लगती है छोटी बात है यार, इससे क्या होता है, पर it's a great effect, because हमारे जितने भी हेल्पर्स है, दे आर इन आवर होम, हमारे साथ बैठ के खाना खाते हैं एक ही टेबल पे. या अगर मैं कुछ खरीदूंगी साहिब के लिए, तो उनके बच्चों के लिए भी सेम खरीदती हूँ. सो उससे बेटे को ये लगेगा कि हाँ, एवरीबडी इज इक्वल, नो मैटर व्हाट एज, नो मैटर व्हाट दे आर डूइंग, और नो मैटर देयर प्रोफेशन. तो या, you can say this is my project, lifelong project, and I would want to have it changed, especially in Srinagar. I'm getting a lot of backlashes. Mahesh sir ने मेरे सारे videos देखे हैं, तो उसके बाद I get these messages from all the Maulvis and all that, ये क्यों बोल रहे हो, वो क्यों बोल रहे हो, but I don't give a damn anymore. I don't know what happened to me. I don't give a damn. I just don't bother. Yeah. Yeah, so this is pretty me. Yeah, so Samya is, yes, मैं सामने को बोलता हूँ, ये वो हाथ में लेके चल पड़ी है बॉर फील्ड के अंदर. So she is now, उसके वीडियो अगर आप एक वीडियो आप शेयर करना चाहें आप ग्रुप में, आप फीलिंग फ्राइडे में शेयर कर सकते हो. आपने किया भी है शायद एक, और उसके अंदर when you see her what she's talking sense, but वो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि खासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा वो हो सकता है, एक कहते हैं ना उसको revolt हो सकता है, that kind of thing. Samya is talking about that. So wonderful, we understood Samya, and we'll know more about her in the times to come. So today
साम्या को हम उसके सॉफ्ट साइड पे ले चलते हैं, इस तलवारबाजी से जरा अलग चलते हैं थोड़ा सा, और सॉफ्ट साइड पे ले चलते हैं जो 11 साल पहले she has left, so she's going to show us something. So what I am thinking is so I am requesting two things from Samya, right? One is the whatever you want to see, whatever you want to tell us, show us it by singing, expressing. Secondly, something in Kashmiri, if you have, then Yeah, you know, why not? so So you want it to would do be- Kashmiri first? Why not? Why not? So let's try to have Kashmiri, right, Rashmi? So हमने नेपाली Yeah, तो सुन ली, so अब कश्मीरी भी देख understand लेते हैं एक बार. Yeah, so it's from my own album that I had sung 10, 11 years back. Okay. It is a song about, you know, what the condition I'm going on right now. It's like you are mourning and you're giving condolences to your own self that, you know, nobody is there to take care of you. It's you who have to do it, you know, for your own self. कोई नहीं आएगा ठीक करने आपको. Yeah, it's like that. Okay. आजानी अजीजो वलगूर करयो, आजानी अजीजो वलगूर करयो, पन्याउत परायो दोस्तोत रफीकाऊ, दोस्तोत रफीकाऊ, बननस तिग्युल हमो भलगूर करयो, आजानी अजीजो. Okay. So थोड़ा सा हिंदी करके बताओ जरा इसका क्या मतलब था जो आपने गाया अभी. Beautiful. I told you it's about, what should I say? I told you it's about self-pity and like there is this situation wherein a woman is there and nobody is there to help her or nobody is there to understand her or acknowledge what she's doing. Now she's telling to herself that stop looking for, help or love from outside, just start it from within. Yeah, like Wow. that. Started from it. Wonderful. That's great. Really, really wonderful. So it is just एक कानों में देखते हैं शहद घुलता है वैसे होती है कश्मीरी लैंग्वेज. I understand that. Okay, so Yeah, now you are exactly. It was very nice, Samya. Oh, Nice, thank you, it's- Rashmi. this coming from that. Anything in Hindi you're telling us? Hindi. Yeah, why not? हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नैया सामने थे किनारे, हम थे जिनके सहारे यूं तो सब है जहां में, दोस्ती है वफा है, अपनी ये कम नसीबी हमको न कुछ भी मिला है, हमको न कुछ भी मिला है, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नैया सामने थे किनारे, हम थे जिनके सहारे. Thank you. Wow. Wonderful. Wow. Wow, Samya. It's amazing. And I was seeing Thank इसके पीछे अगर म्यूजिक भी चल रहा होता ना तो it was like we are listening to a singer. Beautiful voice. Are you sure? It is like kind of I'm spellbound
It was Yes. so emotional. It's something beyond my. I'm speechless. Yes. You had Beautiful. this wonderful, wonderful, God gift with you. Yes. And now It's we can understand कि amazing. किस तरह से ये चीज well डिसाइड अच्छा किया है कि यस अब दोबारा से वापस आना है because this voice should not be kept in lock and key, but more than that. Wonderful. Thanks for taking this request and show us something. So we'll make much more requests in coming sessions also, क्योंकि अब in next August we are going to do something like we are going to have a reunion. So I'm just putting it, a reunion of Feeling Friday people. We are going to have that in August. So उसके बारे में आपसे बात करूंगा कि 1 घंटे का प्रोग्राम है, हम सब लोग वहां मिल रहे हैं और वो भी ऐसे दिन रखेंगे जब सबकी छुट्टी हो, वो ज्यादा बेटर रहेगा. एंड उसमें वी विल हैव एवरीबॉडी मीटिंग ईच अदर. कुछ लोग यहाँ आ पाते हैं, कुछ लोग नहीं आ पाते हैं, कुछ लोग हमें मीटिंग में मिलते हैं. बट एक बार अगर हम सब वहां पर मिल पाए एक जगह पर, जितने लोग हम आपस में जानते हैं, तो सो इट इज आई एम थिंकिंग अबाउट कि अगस्त में एक रीयूनियन किया जाए. तो लेट्स फाइंड आउट कि हाउ मेनी पीपल वी कैन मीट टुगेदर. सो उसमें मैं पहले ही आपको बता दूंगा एंड आई वांट यू टू पार्टिसिपेट. कम विद व्हाटएवर यू हैव, come with whatever you have with you, which is kept there in the boxes so that we can share with each other, right? So Yes, sir. आने वाला टाइम बहुत एक खुले वाला टाइम हो सकता है, right प्रतिभा? So you should also be ready. Just give me a second, just a second. I'm really feeling fortunate to join today, Samya. It looks like I was contemplating today कि join करूँ ना करूँ, but I'm feeling very happy that I decided to join and get to know you. Your strength is like something to learn from. You know, sometimes when we are in a very comfortable situation, we don't see what are the things there which might be very very small, but they might be very struggling as well. And your thought process and the way you are bringing up your son and all those things are really really very appreciative. So feel free anytime, darling, to get connected. And we all are mostly of the same thought process, and we are trying to bring some small change. Can't I'll have to think, and I have friends who are connected, like कभी message कर लिया, but it's not like daily calling, because I totally forgot myself. एकदम से. I think मेरे इधर से ना ये फैन का आवाज आ रहा है, इसलिए क्लियर नहीं आ रहा था. Now it should be clearer. I think that background noise was from my side. तो अच्छा, ये तुम्हारी फैन का आवाज है या पानी का आवाज? अभी ये फैन का था सर, पानी का नहीं है, आज इस समय नहीं है. अच्छा, तो पानी का no issues. So yeah, so when we know, so what happens normally, Samya, जैसा कि मैंने तुम्हें आज क्यों बोला था कि you just join it and become, because what we are finding it here is it's not about that we have friends or we talk about them or not. It's about where we are one place we are non-judgmentally heard. कोई जजमेंट नहीं कर रहा है आपको, कोई आपकी चीजों पे बोल नहीं रहा है, something like this. You are expressing yourself at your best, and this is the platform where we are discussing on, and we are connected with one thread. बार बार मैं याद लाता रहता हूँ, we are connected with humanity. और जो भी इस थ्रेड से जुड़ रहा है ना, उसको इस फीलिंग में अच्छा लगता है. मेरी कई लोगों से बातें होती रहती हैं, बहुत लोग इसको ज्वाइन नहीं कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल, ये कई लोग जो वर्किंग है, खासतौर पर जैसे वर्किंग इन द सेंस जिनका ऑफिस टाइम के बीच में आ जाता है, वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाते. तो वो अलग से मुझसे बात करते हैं एंड दे वांट टू ज्वाइन दिस थिंग. और सबसे बड़ी मजेदार बात क्या है, वो देखते हैं हमारे रिकॉर्डिंग्स को कि क्या हो रहा है उसके अंदर, कैसी चीजें आ रही हैं, वो दे वांट टू सी एंड इट्स वंडरफुल. सो ठीक है, छोटा छोटा करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन वी आर मूविंग फॉरवर्ड. सो Samya, thank you very much for giving your thing, and we know that all of know. So Samya ने एक चीज बोली कि अब उन्होंने गाना भी जो कश्मीरी में गाया ना, वो भी हमारे लिए था कि अपने ऊपर ध्यान रखिए, बाहर से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते. सो क्यों होगा? क्योंकि द मोमेंट यू गो इनसाइड एंड चेंज योरसेल्फ, एवरीथिंग एल्स
started to change outside. That's the principle we are working on. So कई बार जैसे हमने बात की थी कि कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट की बात हम इसके बात करने वाले थे, लेकिन वो पहले ले लेते हैं कि समटाइम पीपल सी दैट एडजस्टमेंट। सो मैंने 3 चीजें आपसे बोली थी जिसके बारे में आपसे बात करने वाला था। Emotional intelligence, sir, and then compromise and understanding. ये 3 And adjustment. एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज एंड अंडरस्टैंडिंग। सो पहले उसकी बात कर लेते हैं, देन विल गो टू द इमोशनल इंटेलिजेंस पार्ट। सो पहले बात करते हैं ये क्या है एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग में क्या डिफरेंस है। मैनी पीपल से मुझे ही चेंज होना पड़ेगा, तो फिर फायदा क्या इन चीजों को समझने का। तो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इज, वी आर एक्सपेक्टिंग इन दिस थिंग कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला बदल जाए या हमारी सिचुएशन बदल जाए या हम चेंज कर लें, ये एक्सपेक्टेशन है और ये एक्सपेक्टेशन तो पूरी नहीं होती। सो एडजस्टमेंट इज जो भी सिचुएशन आपके साथ चल रही है, आप उसके साथ तारतम्य बिठाकर, सामंजस्य बिठाकर एक आप उसके साथ एक अलाइनमेंट बिठा के चल रहे हैं, एंड दैट इज आल्सो बेटर देन कॉम्प्रोमाइज। एडजस्टमेंट इज मच मोर बेटर देन कॉम्प्रोमाइज। यू नो, कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये होता है कि आपने दबा लिया अपने आप को और आप करना पड़, कॉम्प्रोमाइज हमेशा करना पड़ रहा है कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया मैंने तो इसके साथ, एंड नाउ दिस थिंग। बट एडजस्टमेंट उसका एक सुधराव रूप है कॉम्प्रोमाइज। बट व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग इज अ चॉइस। अब अंडरस्टैंडिंग एक चॉइस है कि जब आपने अंडरस्टैंड कर लिया उस चीज को, नाउ यू नो दैट हाउ टू लिव इन दैट कंडीशन बाय अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम किसी से बात कर रहे थे, उसमें उनको ये था कि शुड आई, सो शी इज इन अ जॉब वेयर, सो व्हाटएवर ही और शी, आई एम नॉट टेकिंग एनी जेंडर, इज अ जॉब वेयर, जहां पर जॉब में उनको अच्छा नहीं लग रहा है, दे आर फाइंडिंग दैट सफोकेटिंग है, बहुत ज्यादा यू नो उसके साथ चल रहा है, ही इज नॉट फाइंडिंग एनीथिंग आउटसाइड। लेकिन क्योंकि बाहर मार्केट में जॉब नहीं है, वो कहा जा रहा है ऐसा, मार्केट में जॉब नहीं है, तो आपको यहाँ जॉब करनी पड़ती है, आप करते रहो यहाँ पर जॉब। इसको क्या बोलोगे आप? ये कॉम्प्रोमाइज है, एडजस्टमेंट है या अंडरस्टैंडिंग? Understanding, because choice. हाँ, तो ये अभी Compromise. अभी उन्होंने चॉइस ली नहीं है, ये तो बताया जा रहा हूँ। Compromise with understanding. That job is not there. Compromise is better. तो वहां पर तो क्या है, कॉम्प्रोमाइज है कि भाई कुछ भी कर लो। अब तो उनको अब क्या है, उस केस में अगर वो बंदा क्रिप करता है क्योंकि जॉब ठीक नहीं है, तो वो क्रिप भी नहीं कर पा रहा बेचारा, क्योंकि उसको लगता है यार मैं क्रिप करके भी क्या करूंगा, बिकॉज मुझे जॉब मिल भी गई आज की डेट में, उनके साथ परोस भी दिया आपने, तो वो जो है उसको छोड़ नहीं सकते। ये हो गया कॉम्प्रोमाइज। एडजस्टमेंट, अब ये तो हो गया कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट ये हो गया कि वो ना अपने आप को सुबह वहां ऑफिस लेके जाते हैं, सामने अपने 8 घंटे किस तरह से गुजारते हैं यहाँ पर, और गुजार के कहते हैं यार मरन दे 8 घंटे में करता हूँ, घर तक का उसके बाद देखता हूँ। ये एडजस्टमेंट है। अब देखिए इसमें अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है। आफ्टर 3 months ऑफ अवर कितना हाथापाई अंडरस्टैंडिंग गोइंग टू द ग्राउंड, व्हाट वी फाउंड आउट कि लेट अस फाइंड आउट कि बाहर जॉब है या नहीं, ये तो बात की बात है। आर वी डूइंग आवर बेस्ट टू गेट दैट पर्टिकुलर थिंग, और यू आर जस्ट लिसनिंग? Are we putting the efforts? तो समझ में क्या आया? समझ में ये आया कि मेरे को जो ये लग रहा है कि मेरे पास वो स्किल नहीं है जो बाहर जाके मुझे जॉब दे सके। मेरे पास वो स्किल नहीं है जो मुझे जॉब दे सके। तो द सेकंड क्वेश्चन आया, क्या वो स्किल डेवलप की जा सकती है? द सेकंड क्वेश्चन इज, क्या वो स्किल डेवलप की जा सकती है? नाउ व्हेन दे से यस इट कैन बी डेवलप की जा सकती है, यहां पर अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही, यानी कि अगले 6 महीने अगर उनको ये टाइम मिल जाए, अब सोचिएगा फर्क, उसी जॉब में उस बंदे ने डिसाइड कर लिया कि मैं सिर्फ 6 महीने यहाँ पर हूँ, 6 महीने में मैं 6 महीने के बाद इस कंपनी में नहीं रहूंगा, दैट्स माय चॉइस। इस 6 महीने के अंदर अंदर मैं अपनी स्किल डेवलप करूंगा, इस 6 months के अंदर अंदर मैं अपनी स्किल डेवलप करूंगा, एंड आई विल मेक माई सेल्फ, आई विल सी कि बाहर मार्केट में मैं अपने आप को किस तरह से डेवलप कर सकता हूँ। नाउ इसको क्या कहोगे आप? नाउ दिस इज नाउ अंडरस्टैंडिंग योर सेइंग। अब आप अंडरस्टैंडिंग का एक वो देख रहे हो, अंडरस्टैंडिंग का कि एक कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, एक
ऐसा कर लेता हूँ। तीसरा, मेरे पास 6 महीने का टाइम है, 6 महीने के अंदर आई विल डेवलप माई स्किल्स एंड इन दिस 6 months आई विल डेवलप माई नेटवर्क सो दैट आई कैन गेट द जॉब्स। So sir, ये किस temperament में आएगा this thing? The person who thinks like this. Basically, normally these people are peaceful perfects. Ah. Normally these people are peaceful perfects. अब तो कंफर्म हो गया। Confirm है? मेरा बंदा पीसफुल परफेक्ट ही है। Good है, good है, good है। वहीं पर आता है, क्योंकि वहां क्या आता है, वहां पर वो actually peaceful perfects are driven by fear, understand? They are driven by fear, इसीलिए गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर ज्यादातर लोग आपको पीसफुल परफेक्ट बैकग्राउंड से मिलते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के आपको वहाँ पावरफुल बहुत कम मिलेगी, राइट? मिलेगी भी तो गवर्नमेंट जॉब पता कैसे कर रहे हैं, सिर्फ एक वो खिलाती कहते हैं ना, वो सिर्फ उसको टाइम पास के लिए कर रहे हैं। उनका अपना कुछ ना कुछ बड़ा बिजनेस पीछे होता है या कुछ ना कुछ ऐसा होता है, एंड दे आर जस्ट डूइंग गवर्नमेंट जॉब फॉर गेटिंग देयर बेनिफिट्स आउट ऑफ दैट, पेंशन लेने के लिए। पेंशन लेने के लिए। आई एम देयर। और रुतबा, Powerful risk takers. they are risk takers and they want to go where nobody has gone before. स्टार ट्रेक वाला कहानी है ना, तो वो करते हैं। लेकिन पीसफुल परफेक्ट्स आर ऑलवेज इन दैट काइंड ऑफ थिंग। इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत कम पीसफुल परफेक्ट्स पाए जाते हैं टू हैविंग देयर ओन बिजनेस वहां पर, क्योंकि हैविंग योर ओन बिजनेस के अंदर यू आर सो या तो आपको मिलेंगे बिल्कुल लोनर्स, यानी जैसे फॉर एग्जांपल दे आर द ओनली पर्सन, मैं बैठा हूं, आपसे मुझे क्लाइंट से बात करनी है, मुझे काम करके आपको देना है, दैट्स माय बिजनेस, 1-to-1 टॉक, दैट्स इट। आई डोंट हैव अ टीम एंड काइंड ऑफ थिंग। ज्यादा लोग वहां मिलेंगे, या आपको मिलेंगे वहां पर जहां पर इंटेलेक्चुअल काम ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्चरिंग फर्म है उनकी, इंजीनियरिंग फर्म है, वहां ज्यादा मिलेंगे। लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो कंपनी का सीईओ मैनेजर, इस जगह पे वो चीज नहीं मिलेगी आपको। ज्यादातर लोग पावरफुल परफेक्ट्स, पावरफुल पॉपुलर्स आर दी बिजनेस ओनर्स, ज्यादातर लोग। लेकिन उनके टीम में जरूर मिलते हैं आपको ये लोग, बिकॉज ये चाहिए तो है आपको। इवन इफ यू आर अ टीचर, ओके शिवा, यू आर अ टीचर, नाउ थिंक अबाउट योर कंप्लीट स्टाफ। Yeah, so my staff is also very much faculty based. So my faculty is science faculty. So mostly in science faculty, what I have seen, mostly teachers are actually, it's mixed. Powerful, perfect, and perfect, peaceful teachers are also there. Yeah. The difference is powerful, perfect, they make the kids do things, and peaceful, perfect are the favorite ones. Yes. Whether the child is doing anything or not, but the teacher Yeah. is favorite. Yes. Yes. And faculty wise, if you see, I think science and maths always, mostly the perfects are there, You're right. but the P department, they are the popular ones. खेलो कूदो मजे करो. मजे करो। Yes. So yeah. तो जो एक्टिविटी डिपार्टमेंट होता है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं, वहां पर आपको ज्यादातर पावरफुल पॉपुलर्स मिलेंगे। Yeah, और correct. ज्यादातर पावरफुल पॉपुलर्स मिलेंगे। लेकिन हाँ. ये जो डीप Science चीजें and हैं, maths. मैथ, Science, साइंस, maths. इसमें घुसने वाले जो लोग हैं वो आपको परफेक्ट मिलेंगे। तो बेसिकली एक और ऑब्जर्वेशन है सर मेरा, अगर मैं कंपेयर करूँ साइंस और मैथ्स फैकल्टी में भी, तो मैथ्स में ज़्यादा मुझे पीसफुल दिखते हैं, और साइंस में ज़्यादातर पावरफुल परफेक्ट दिखते हैं, और मैथ्स में पीसफुल परफेक्ट दिखते हैं। सो बेसिकली अगर आप देखें ना, तो कोई भी चीज जिसमें डिटेल ओरिएंटेशन होगा, कोई भी चीज में डिटेल हाँ. ओरिएंटेशन होगा, उसमें आप, क्योंकि वहां क्या चाहिए आपको, फोकस एक चीज पे चाहिए। हाँ, जैसे जितने साइंटिस्ट हैं, इन्वेंटर्स हैं, इसमें बहुत ही कम आपको पावरफुल्स मिलेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि साइंटिस्ट ने बना दिया, पावरफुल ने मार्केट करके अपने नाम पे कर लिया, वो अलग चीज। yeah, I think the maths department is why they are peaceful perfect, because उसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस आपको बैठ के करना है, और साइंस में उछल कूद है, लैब में काम भी है, a lot of Yes. experiments, so it requires the powerful perfect personality there. एब्सोल्युटली, क्योंकि मैथमेटिक्स में लॉजिक्स एक जैसे हैं, 2 + 2 हाँ. 4 ही होगा, आप उसको हाँ. 4.1 नहीं कर सकते। साइंस में Right. तो आप कुछ भी डाल के हल्का सा चेंज करके उसको बदल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, There are yeah, no very clear. creativity required, but mathematics is straight, ऐसा तो ऐसा, Intense. intense and constraint. So yeah, this happens. So ये सब चीजों को जब हम जब अंडरस्टैंड करते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज जब हम बात कर रहे थे, अब आपको समझ में एक बार और अच्छी तरह आएगा, दिख भी लेगा। एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज एंड अंडरस्टैंडिंग का फर्क बहुत है।
अंडरस्टैंडिंग इज द वे। जब आप ये अंडरस्टैंड करेंगे, इवन फॉर एग्जांपल साम्या का एग्जांपल लेते हैं, साम्या जहां पर भी खड़ी है वहां पर 3 तरीके से काम हो सकता है: एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज एंड अंडरस्टैंड। नॉट अंडरस्टैंडिंग अदर्स, अपने को अंडरस्टैंड करके स्टेप लेना। जहां पर कॉम्प्रोमाइज या एडजस्टमेंट आएगा वहां पर विद्रोह भी आ सकता है, जिसे बोलते हैं रिवोल्ट। यस, रिवोल्ट भी आ सकता है। लेकिन चाहे जहां आती है अंडरस्टैंडिंग, जहां पर क्रिएट होती है, वहां पर रिवोल्ट की जगह पर आपका एक माइंडसेट क्लियर बनता है कि व्हाट आई एम डूइंग इज फॉर व्हाट पर्पस। लॉन्ग टर्म गोल है, यू हैव अ लॉन्ग टर्म गोल, और उसके बीच के मुताबिक आप चलते हो। सो दैट इज द डिफरेंस। तो जब भी कोई आपसे पूछता है सेल्फ के बारे में, वी शुड नो दैट actually self understanding is the first step towards coming out of compromise। आप कॉम्प्रोमाइज से बाहर निकलने का पहला स्टेप है वो जिसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग्स। सो दिस इज यू जस्ट मिनट। ओके, फाइन। सो नाउ सो आई थिंक ये बात करनी सी जरूरी थी, बिकॉज ये क्वेश्चन काफी बार आया। नाउ वी टेक द पॉइंट सेकंड, इमोशनल इंटेलिजेंस की हम लोग बात कर रहे थे कि इमोशनल इंटेलिजेंस को हमने बहुत बार नाम सुना होगा आपने, हिंदी में भावनात्मक उत्कृष्टता बोलते हैं इसको, ये आपने देखा होगा। लेकिन ये है क्या इमोशनल इंटेलिजेंस और क्या करती है, आज उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, सो दैट यू कैन गो ऑन योर ओन रिसर्च, बिकॉज दिस इज समथिंग जिसके बारे में मैं तुम्हें एक चीज पढ़ के बताता हूं एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। दिस इज रिटन बाय ट्रेविस ब्रैडबरी। सी दिस, Emotional Intelligence 2.0. Shiva? Emotional Intelligence 2.0. Yeah, this book. This book is written जब डेनियल गोल्डमैन की पहली बुक आई थी इमोशनल इंटेलिजेंस की 1980s के अंदर। उसके बाद ये नया वर्जन है उसका, और इसके अंदर एक मैं चीज आपको पढ़ के साथ आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये और हमारे टेम्परामेंट से कैसे मैच करता है। ये सरप्राइज टू सी दैट। और कैसे ये हम कैसे जब अब हम कॉर्पोरेट में जा रहे हैं या एजुकेशन इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, वहां पर इमोशनल इंटेलिजेंस को किस तरह लेके जा रहे हैं। पहला वर्ड फॉरवर्ड किसने लिखा है? इसका फॉरवर्ड है पैट्रिक लेंसियोनी। अगर किसी ने इसका नाम सुना हुआ है तो इनको बोलते हैं ही इज द फादर ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के ऊपर ये पूरे वर्ल्ड में अथॉरिटी है, जैसे स्टीवन कोवे अथॉरिटी है, जैसे जिम रॉन अथॉरिटी है, पैट्रिक लेंसियोनी लीडरशिप की अथॉरिटी। नाउ ये क्या बोल रहे हैं? पहली चीज, नॉट एजुकेशन, सुनिएगा जरा, नॉट एजुकेशन, नॉट एक्सपीरियंस, नॉट नॉलेज और इंटेलेक्चुअल हॉर्स पावर, none of these serve as an adequate predictor as to why one person succeeds and another doesn't. There is something else going on that society doesn't seem to account for. यानी नॉट एजुकेशन भी नहीं, एक्सपीरियंस भी नहीं, और नॉलेज या इंटेलेक्चुअल हॉर्स पावर भी नहीं है सक्सेस का प्रेडिक्टर, कौन सक्सेसफुल होगा। ओके, we see examples of this every day in our workplaces, our homes, our churches, let's talk about churches, our schools and our neighborhoods. We observe supposedly brilliant and well-educated people struggle, while others with fewer obvious skills or attributes flourish. And we ask ourselves why. या इतना पढ़ा लिखा इंसान है ये फिर भी ऐसा है, और लोगों के पास ज्यादा एजुकेशन नहीं है फिर भी वो सक्सेसफुल हो रहा है, ऐसा क्यों? The answer almost has, so this is the last paragraph, the answer almost always have to do with this concept called emotional intelligence. And while it is harder to identify and measure, बहुत harder है than IQ or experience, certainly difficult to capture on a resume, its power cannot be denied, right? So this is something we are working for, emotional intelligence. लेकिन इसके अंदर जो अब आज की डेट में लिखूंगा ना, वो ये बहुत सिंपल है। इमोशनल इंटेलिजेंस जो हम EFT में सीख चुके हैं ना, उसका एक डिफरेंट पार्ट है। इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर आप लेते हैं तो इस तरह ले सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। आई हैव नोटेड डाउन समथिंग फॉर यू। फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर ओन इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ आवर ओन इमोशंस। मैं देख पा रहा हूँ इमोशंस,
यानी मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ मैं कब मुझे गुस्सा आ रहा है, कब मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, कब मुझे गिल्ट हो रहा है, मैं उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि गुस्से को मैं हेल्पलेस को गुस्सा बोल रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन को कुछ और बोल रहा हूँ। आई एम आइडेंटिफाइंग माई ओन इमोशंस एंड अनदर वन, दूसरे की भी इमोशन को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। So I'm able to identify my own emotions. I'm able to identify other emotions and how to handle या मेरी लाइफ उन इमोशन से कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है उसको भी देख पा रहा हूँ। यानी 3 चीज इमोशन इंटेलिजेंस का बिल्कुल सिंपल वर्जन ये है। 3 things. First, am I able to identify my own emotions? Second, am I able to identify others' emotions? Third, am I able to see how these emotions are affecting my daily life? कैसे इफेक्ट करें? ये 3 चीजें इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे इजीएस्ट पार्ट है, जो हम किस तरह से इसको किस तरह से अगर आप दोनों वर्जन को देखेंगे, टेम्परामेंट और ईएफटी को, तो ये दोनों चीजें वहां पर हम लोग इस पे काम कर रहे हैं जब सेल्फ अवेयरनेस की बात आती है, राइट? ओके, अनदर थिंग, ट्रिगर्स। एक और चीज इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है, मोटी मोटी बता रहा हूं। एक और चीज है, क्या आप अपने ट्रिगर्स को पहचानते हैं? जो आपको ट्रिगर करता है, क्या आप उसको पहचानते हैं? नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन नोज व्हाट ट्रिगर्स हिम और हर, एंड इफ यू डोंट नो इट, देन वो वैसे ही हो गया कि मुझे नहीं पता मुझे किस चीज से एलर्जी है और मेरे को एलर्जी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नहीं पता है कि आपको डस्ट से एलर्जी है और आप बिना मास्क लगाए बाहर जा रहे हो, आपको एलर्जी होगी तो आपको तो मैं बीमार हो गया, लेकिन डॉक्टर कहता है आपको एलर्जी है डस्ट से, पता है आपको तो नहीं पता है। So you are always going outside without mask and you are always getting it. Same way, क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर इमोशन या इंसान या ऐसी घटना होती है जिससे आप एकदम ट्रिगर हो जाते हो? शिवा के साथ एक बार हुआ था सर, आज भी हुआ। अच्छा, okay. When Samya was sharing and when you are saying, then I can identify clearly when you said this. I do not know I should share this now or not, but let me Please, do it. please. So today when you said now, I can clearly distinct कि जैसे जब Samya was sharing, I was getting very very emotional, and that day also I told you that when someone in the situation which is more or less in their hand, and because of the social norms they are not able to, overcome those, I get very very emotional. It is a trigger for me. On the other hand, if someone has shared that they have this physical disease hai ya kuch, probably might have shared that they have cancer or they fought with tumor or something, I wouldn't get that emotional. So that is the difference. That Okay. when so just now I could able to identify that this could be my trigger. Yes. Now But- this is what we call is starting of self-awareness. Yes, you were telling something. Please, Shiva. Yes, continue. But how to after identification, this is there. When I see something like because of the social unnecessary chaos of people, human, I feel triggered. But अगर कोई ऐसे बीमारी वगैरह है तो ठीक है, हुई है वो हो जाती है, क्या करें? That kind of emotion won't come there. तो अभी emotion trigger identify हुआ तो फिर उसको फिर कैसे क्या करें? Yes. So yes, Samya. Your voice, Samya, voice is not clear. एक मिनट, शिवा आपके पीछे ये जो पंखे की आवाज है, मैं उसको यहाँ से म्यूट करता हूँ। पंखा मत बंद करो, मैं म्यूट करता हूँ। तुम्हारा पंखा बंद है तो पसीना आ जाएगा। नहीं, बंद है सर, वो वाला तो बंद कर दिया मैंने, बट स्टिल लेट मी, आई थिंक ये वाटर का ही आ रहा है। हाँ, तो एक बार म्यूट कर लोगे ना, फिर आप जब बोलोगे तो अनम्यूट कर लेना। Yes, Samya. You can hear me now? Yeah. 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 Okay. See, with case of cancer or any disease, you said that उतना बुरा नहीं लगता because you know that is not in your or in the patient's hand. वो ऐसी चीज है जो induced नहीं है. But when it comes to social norms, it's induced, and you feel helpless. So same is the case with me. So you feel helpless. You're right, and you're not doing anything wrong, but still, just to make XYZ happy, or it should not go like someone should not say anything bad. So I think that's the problem with you, and same is the case with me also. I have told this to Sharma sir also. I'm a high rated empath. अगर मतलब 10 बिल्डिंग छोड़ के कोई रो रहा होगा ना, मेरा इतना सेंसिटिविटी लेवल हो गया है
towards sadness, or if somebody is not well, that I can actually listen. It looks like stupid, but it's happening. So today only I had a session with my psychiatrist, so I was telling her this, and she said, in your case, it will happen because you won't be inclined more towards happiness. But अगर कोई दुखी होगा ना, 1000 लोगों में से एक बंदा दुखी होगा, तुम्हें डायरेक्टली उस पे नजर जाएगी. Because जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम अभी भी होती है ना शिवा, जैसे I have so many clients right now, they call me for whatever reason, emotional first aid I call it. I could relate to them, you know, एकदम मुझे वो दिल से निकलते ना, हाँ ऐसे ऐसे हो, because I have gone through everything. You name it and I have faced it. Yeah, so. Yeah, yes. And these two ladies are talking sense here, because that's where, so agar ऊपर देखें, you know what, Megha and Rashmi and Pratibha, you also understand that, you know, both of these ladies are powerful, and see their sensitive level. So यहाँ फर्क देख रहे हो आप, साम्या भी पावरफुल है एंड शिवा भी पावरफुल है, दोनों का सेंसिटिव लेवल बहुत हाई है. सो दिस टेम्परामेंट इज, वो ना कहते हैं हर इंसान, हर एक इसके पीछे एक वो होता है, हर एक इंसान पहले वो, चाहे वो टेम्परामेंट कोई भी हो, लेकिन वो अंदर से इंसान है. यहाँ पर अगर हम उस सेंसिटिविटी की बात करें, हम उस इंसान की बात करें, तो चाहे वो टेम्परामेंट कोई भी है, लेकिन वो जब अपने रियल उसमें आता है, जब वो अपने को एक्सप्रेस करता है, तब उसकी एक अलग ही वो चीज निकल के सामने आती है. सो दैट्स रियली देयर. सो इमोशनल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे थे, यही है इमोशनल इंटेलिजेंस, की अपने इमोशंस को समझना, दूसरे के इमोशन को समझना, वो इमोशन हमें कैसे तंग कर रही है उसको समझना, और साथ में अपने ट्रिगर्स को पहचानना. जैसे सामने कह रही है, मेरे को, मैं कनेक्ट कर पाती हूँ लोगों से, शिवा कह रही है कि यस मैं कनेक्ट कर पाई, ये जो पहचानना है अपने ट्रिगर्स को, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है. सो जब भी हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज इमोशनली इंटेलिजेंट एंड नॉट. मैंने कई लोग देखे जो ये बोलते हैं, यार मुझे समझ नहीं आ रहा, इसको बात नहीं समझ में आ रही है, मैं इतना बता रहा हूँ समझ नहीं आती बात. नाउ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, कहां से आ रहा है वो नहीं समझ पा रहे, या वो ये कहते हैं, देखो छोटी छोटी बात को दिल पे लेके बैठ जाते हैं, यार कैसे लोग हैं, बड़े बड़े अजीब से लोग हैं, जरा सी बात बोलो मतलब they are so sensitive. उनके लिए sensitiveness is a disease, it's a weakness, it's something you should be treated for, it's sensitivity. But अगर आप वैसे जाके देखो तो sensitivity is the biggest strength of human. अगर आप sensitive नहीं हो तो human canon like नहीं हो, because आप sensitive नहीं हो, चाहे वो जानवरों के प्रति हो कुछ भी. I've seen people जो एनिमल्स के लिए भी उतने सेंसिटिव हैं जितने शायद इंसानों के से भी ज्यादा एनिमल्स के लिए सेंसिटिव. They can't see people. तो मैं अभी एक so अगर आपने I don't know, yeah, it's a series or something whatever, उसके अंदर एक सीन आया जहां पर एक गैंगस्टर है, और वो अपने किसी चेले को बता रहा है कि मैंने एक चीज सीखी है दुनिया में, कि जिन लोगों को डॉग्स पसंद करते हैं, so understand this, जिन लोगों को डॉग्स पसंद करते हैं, और जिनको डॉग्स पसंद है, और जिन लोगों को डॉग्स पसंद करते हैं, दे आर वेरी गुड पीपल. नाउ थिंक अबाउट इट. एक गैंगस्टर बोल रहा है दूसरे गैंगस्टर, और उसको एक शूट आउट के लिए भेजा, कि इस बंदे को खत्म करना है. सामने बैठा है वो, मतलब ही इज हायर्ड क्रिमिनल जैसे होते हैं, सामने बैठा है, गोली उसके पास है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ, वो घर से बंदा बाहर निकला, उसको वहां शूट करना था, घर से बंदा बाहर निकला, उसकी वाइफ पीछे आई, उसके हाथ में डॉगी था, छोटा सा डॉगी था. तो उसके हस्बैंड ने बोला, ये क्यों लेके आई हो, कहती मैं. तो वो डॉगी कौन था, वो जो डॉग था ना, वो स्ट्रीट डॉग था. सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. वो स्ट्रीट डॉग था. वो लेडी ने स्ट्रीट डॉग, क्योंकि वो बिच थी, तो वो थी प्रेग्नेंट थी, तो लेडी उसको अपने घर ले आई. तो उसके हस्बैंड ने पूछा, ये क्यों ले आई यहाँ पर. तो उसने बोला कि मैं इसलिए लाई हूँ बिकॉज इसका कोई नहीं, और मुझे भी एक सहारा मिल जाता, और इसको भी मैं अपने पास रखूंगी, इसका जो डिलीवरी वगैरह मैं घर पे करूँगी. तो उसका इतना लगाव था उसके साथ, और हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं था. लेकिन जब वो बाहर आया उस दिन, ये बाद में जब कहानी खत्म हुई तब उसने बताया कि मैंने क्यों नहीं मारा उसको. वो बंदा बाहर आया तो पीछे देखा, उसकी वाइफ जो है ना, वो कुत्ते के साथ उसको बड़ा प्यार कर रही है, और उसको बोल रही है कि इसके लिए तुम ये लेके आना, वो लेके आना, ये. तो उसको अपने बॉस की बात याद आ गई, कि जिनको डॉग्स पसंद है, और डॉग्स जिसको पसंद करते हैं ना, वो अच्छे लोग होते हैं.
And Sir, his issue. मुझे डेजावू सा हो रहा है, ये किसी मूवी का सीन है क्या? मूवी नहीं है ये वो है वेब सीरीज? वेब सीरीज। हाँ, मुझे लग रहा है मैंने बताता हूँ कहीं तो कौन सी। देखा। ये नॉट उसकी नॉट एग्जैक्टली याद आ रही है मुझे, लेकिन हाँ ये सीन थोड़ा मुझे याद आ रहा है, वेब किसी में सीरीज तो है। है। यस वेब सीरीज है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ये वेब सीरीज है। उसके अंदर अब ये सीन देखो, उसके अंदर क्यों एनिमल्स के प्रति जो आपका लगाव है वो बढ़ जाता है, बिकॉज सेंसिटिविटी जो है ना वो एनिमल्स में बहुत ज्यादा है। वो आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका व्यवहार उनके साथ जैसा होता है ना वो दिखाता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। सो ये है वो लेवल जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस का नाम देते हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि इमोशनल इंटेलिजेंस को ज्यादा बड़ा बर्डवर्ड ना बना के हम ये समझें कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है खुद के इमोशन समझना, दूसरों के इमोशन समझना, ट्रिगर, उस ट्रिगर को समझना कि वो ट्रिगर क्या है, कहां से आ रहा है वो ट्रिगर, और उन ट्रिगर्स को पहचान के उसके ऊपर काम शुरू करना। नाउ दिस इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला पार्ट है। इसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, राइट? दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इमोशन। एक्चुअली इमोशन लास्ट टाइम आपसे लास्ट चीज जो शेयर करूंगा, बिकॉज वी हैव टू लीव बाय 4:30 आल्सो। लास्ट चीज आपसे शेयर करता हूं। देयर आर एक्चुअली 4 parts of emotional intelligence. 4 parts. First is self awareness. First part is self awareness. So हमारा जितना भी टेम्परामेंट और EFT है, ये सारा सेल्फ अवेयरनेस का, इमोशनल इंटेलिजेंस का फर्स्ट वाला पार्ट संभालता है, सेल्फ अवेयरनेस, राइट? दूसरा पार्ट है सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, यानी सेल्फ मैनेजमेंट, ये है दूसरा पार्ट। जब हम बात करते हैं अपने वीकनेस पे काम करने की, जब हम बात करते हैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की टेम्परामेंट के अंदर, ये वो वाला पार्ट संभालता है जो कि बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट। थर्ड इज सोशल अवेयरनेस। थर्ड इज सोशल अवेयरनेस। जब हम बात करते हैं हाउ टू अंडरस्टैंड अदर्स टेम्परामेंट, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, you know, not compromising or something, understanding others, finding out where they're coming from, this is called social awareness. And last is relationship management. जब हम बात करते हैं how to get along with others, getting along with other people, जब हम टेम्परामेंट में बात करते हैं, वो है सोशल रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो वो जो चारों चीजें हैं ना, बेसिकली आप टेम्परामेंट को ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम अपने आप को इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ ही लेके जा रहे हैं। The more people are self-aware, the more they are emotionally intelligent. ये ध्यान रखने वाली बात है। Neither कि आपने कितनी बुक्स पढ़ ली हैं, आपको कितनी इंटेलिजेंस है, कितना आप अच्छा बोल पाते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। How much you understand yourself, how much you are self-aware, अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ दोनों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैं बोलूं मेरी स्ट्रेंथ है, आई कैन करेक्ट, मेरी वीकनेस है, यू नो, स्टिल आई एम नॉट एबल टू डिसाइड मच फास्टर। सो मैं अपनी वीकनेस को अगर पहचानता हूं या मैं अपनी चीजों पे काम कर सकता हूं, जब तक मैं अवेयर हूं तब तक ही वो काम होगा, नहीं तो आप ब्लाइंड स्पॉट में जाएंगे। जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों करता है, मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों करता है। जिसके मुंह से आप ये सुन रहे हो ना, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करता है, आप समझ लीजिए कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है सामने वाला, एंड दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सो दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। अब जब हम कॉर्पोरेट में एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, फॉर शिवा फॉर योर इन्फॉर्मेशन आल्सो, मेगा फॉर योर इन्फॉर्मेशन, व्हेन वी आर गोइंग टू, वी आर गिविंग देम अ डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। नेपाल में ये मैं उनको yes समय So actually I have my hearing, I told you, no, I have to go in 10 minutes. we are also finishing by 4:30 क्योंकि हमें भी next 4:45 पे स्टार्ट होगा हमारा next, तो 2 minutes हाँ, more. ठीक है। We are also finishing. One more battle for me. Yeah. Wish me luck. And yes, so we all are wishing you luck. साम्या का आज एक hearing है, साम्या का आज she is going for a hearing, and we all wish you luck. You come out strong. जो कुछ भी होता है ना साम्या, जो कुछ भी होता है साम्या, वहां पर जो कुछ भी होगा वो आपको एक स्टेप आगे लेके जाना चाहिए, करेज, दैट्स इट। बाकी तो अल्लाह मालिक, लेकिन वो एक स्टेप आगे लेके जाना चाहिए आपकी अंडरस्टैंडिंग, राइट? सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड, एंड कीप अस अपडेटेड, क्या होता है, कीप मी अपडेटेड प्लीज, so that we can know that what is going on. We are praying for you. So this is all about Samya, praying for you. Yeah. So this is all about today, because today we have some limited time, but we have intense discussion. So it's not about, you know, what we are talking about. It's about how we are understanding emotions. And the moment you understand your emotions, your रास्ता खुल जाता है दूसरों की इमोशन समझ। इसीलिए हम अपने ऊपर काम करते हैं।
right? So this is about today. एक और सब्जेक्ट है उसको मैं टच नहीं कर पा रहा हूँ अभी बिकॉज मैंने कहा था टाइम रहेगा तो करेंगे, तो टाइम नहीं है बिकॉज 15 मिनट का टाइम है. शिवा मेगा हमारे पास, वी आर गोइंग फॉर follow-up session with Nepal also at 4:45. We are going there, Rashmi. So yeah, so wish you luck, Samya, and let's we are connected on this thing on Feeling Friday group. Next Friday फिर मिलते हैं, इस बात को कंटिन्यू करेंगे, जो सब्जेक्ट रह गया उसको टच करेंगे एंड अगेन अगले हफ्ते एक दो नए टॉपिक लेके आते हैं so that we can discuss. Sure, Right. sure. Sir. Thank you so much. Thank you all. Thank And you. Shiva, be Right. okay. Right. Yeah. Thank you. Bye, Thank Dafis. you. Thank you. Bye Mega. Bye Rashmi. Bye Bye Pratibha. Samya. Bye. Shiva. See you then. Bye Bye-bye. everyone. Bye. Bye. Bye.